Yeah, it's fine now. So this Holashtak and Punikal we discussed, that is 8 days before Holi. And when the sun is changing sign, that is at the moment of Sankranti, 6 hour 24 minutes before that and 6 hour 24 minutes after that. So that time we don't consider, and we discussed also this is because just for the sake of convenience, there may not be any astrological reason behind that. Now we come to Hora. Most of the time you find there is no time to search for the Mahurat or to wait for the Mahurat. So we have to do many things in hurry, in haste, and hardly there is a time to wait for days. We can't even wait for the hours actually. So then we make use of this Hora Mahurat. So what is Hora Mahurat? The day is divided into 24 horas, like the day consists of 24 hours. So similarly, the day consists of 24 horas. And day is from sunrise to next sunrise. And how the hora start? The first hora after the sunrise is the hora of the Lord of the weekday. First hora after sunrise is the hora of the Lord of weekday. Suppose today is Sunday, and let's say sunrise is at 5:30 in the morning. So from 5:30 to 6:30, we have a hora of sun, because sun is Sun. the sun is the Lord of weekday. The next hora is what? What is the sequence of this hora that we have to see? The next is third from the back or sixth from the front. Sixth from the front means if you start from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So next hora will be of which planet? Lord of Friday is Venus. Venus. So next hora will be of Venus. And if you go third from the back, it means today is Sunday, then Saturday, then third is Friday. So the simplest is third from the back. So after Sun, the next hora will be of Venus. Then after Venus, which will be the next hora? Thursday, then Wednesday. Jupiter. Mercury. 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 And after Mercury, then Tuesday and Monday. Monday. Moon. Moon. And after Moon, Sunday and Saturday. That is Saturn. Saturn. So like this, there's a sequence of hora. All the 7 horas will come in this sequence. And after the completion of the 7 hora, the sequence will be repeated. So we have each hour or each full 1 hour, the hora of a particular planet. So when we are in hurry, we can't wait for the proper Mahurat, then we make use of this Hora Mahurat also. Because in the Hora, certain Horas, we can do certain type of work. So without waiting for Mahurat, we make use of this Hora Mahurat. And what we can do in which Hora, that is here. For example, if Sun's Hora is running, then we can do this any administrative work. We want to join new service, we can do any work connected with the government, we can do any yag month or the sale of the vehicle actually. Similarly, in the moon hora, we can do any agriculture work, wearing of new clothes, gems and jewelry, any creative work, manufacturing or buying of silverwares, because moon represents silver also. And then Mars hora, debate, argument, lending money, mining, metal work, goldsmith, surgery, and exercises. All these things you can do in the hora of Mars. सर इसमें मार्स के होरा में जैसे प्रॉपर्टी परचेज वगैरह वो सब भी कर सकते हैं? Correct, yeah. Because Mars is basically connected with the real estate. So any work related with the real estate, we can do in the hora of Mars. These are just some of the examples, but anything connected with the Mars, anything which comes under significations of Mars, that we can do in the Mars hora. Mercury, literary work, education, writing, publishing, friendship, games, accounts, public relation, this type of work, whatever comes under the significations of Mercury. Jupiter hora, any religious work, marriage, yag, charity, judicial work, wearing of new clothes, pilgrimage, buying of new vehicles also. Similarly, in the Venus hora, any music, love, celebrations,
meeting with near and dears, buying of clothes, jewelry, commercial work, filmmaking, and even you can say buying of vehicle also we can do in this hora of Venus. Saturn hora, Grah Pravesh, housewarming, entering in a new house, service तो related. सैटर्न से एंटरिंग हाउस वार्मिंग का कैसे लिंक हुआ? वो तो मार्स होते हैं ना प्रॉपर्टी का तो. What is the meaning of Saturn? Any kind of work which you want to be of permanent nature. Suppose you have built a good house for you, and Longevity. Longevity. You want to stay there for a long time. सर फिर तो मैरिज का भी होगा. हाँ जी. मैरिज वगैरह का. Marriage is something different. It is basically a religious ceremony. So, उसमें Jupiter and Venus they play a very important role actually. Even I tell you one thing. Suppose we go to a hospital, and 8 number is the number of Saturn actually. Number 8. So if you get a room, let's say 26, 62, or 8 or 17, then you see the position. You will not come out in a short time. You have to stay there for a long time actually. So anything of permanent nature, suppose you get a promotion and you want to remain there for a longer time, then you take the help of this Saturn hora actually. So house, we built a house, we want to stay there for a long time. If you want to stay there for a long time, then you take. Many times it happens that it's not a good house, we don't want to stay there for a long time, then we will not enter. But normally we build a house for a lifetime once actually. So we build a good house, we want to stay there for a longer time. That's why we enter into the Saturn hora actually. तो जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट कोई स्टार्ट करना है या मेडिसिन लेनी है तो उसमें कौन सा प्रेफर करेंगे हम होरा? मेडिसिन के लिए कौन सा होना चाहिए? Jupiter. Which is the planet of healing? नहीं सर, सन होना चाहिए. Sun. देखिए, Sun and Jupiter both you can say, because Sun is a planet which gives us life actually, and Jupiter is a planet of healing. So we can either do in the hora of Sun or even in the hora of Jupiter also. जॉब के बट लिए उसको हम सैटर्न के होरा में नहीं करेंगे, क्योंकि सैटर्न के होरा में करेंगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक लंबी चलती रहेगी. सर जॉब के लिए सन होता है या सैटर्न होता है? देखिए, दो चीजें हैं. सन इज बेसिकली एनीथिंग कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट में जॉब करना है तो सन बेस्ट है. और अगर जॉब भी देखिए दो तरह के हैं. एक तो यू वांट टू ज्वाइन ओनली फॉर ए टेम्परेरी पर्पस, यू डोंट वांट टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और दूसरा होता है कि आपको अच्छा जॉब मिला, बहुत अच्छा, एंड आपको लगता है कि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, मैं लंबे टाइम तक काम करूँ वहाँ पर. तो देन यू डू इट इन द होरा ऑफ सैटर्न एक्चुअली. जितने भी जो लॉन्ग टाइम आप चाहते हैं कि वहाँ पर मैं उसको एंजॉय करूँ या रहूँ या उसका बेनिफिट मुझे मिले, तो वो सारी चीजें हम सैटर्न के होरा में करते हैं. राइट? यस. तो हम लोग ये होरा का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम होरा मुहूर्त कहते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता हमारे पास, तो उसके टाइम पर हम लोग कभी कभी जो है ये अच्छे होरा में, जैसे मान लीजिए कोई बहुत शुभ काम करना है तो जुपिटर के होरा में कर लीजिए, क्योंकि जुपिटर का होरा इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रॉस्पेरिटी. सो एनी काइंड ऑफ वर्क कैन बी डन इन द होरा ऑफ जुपिटर. अंकल, अगर ट्रैवल करनी है और आपको जल्दी वापस घर आना है, you don't want to stay for long, so then what would be the hora for that? बताइए कौन सा होना चाहिए? मार्स जल्दी का तो या मून इज फास्ट. मून इज फास्ट और ट्रैवल से भी रिलेटेड रहेगा. ट्रैवल का वैसे तो ये कौन सा प्लैनेट है ट्रैवल का? मून. सर वैसे तो मरकरी भी Mercury is a planet of communication. हाँ. Mercury is basically a planet of communication. तो मरकरी के होरा में करिए. मार्स के होरा में करेंगे तो लड़ झगड़ के वापस आ जाएंगे.
So Mercury is the best hora for that actually. And moon is change के लिए अगर कोई इस टाइप का काम है कि वो कोई चेंज कर रहे हैं तो मून के होरा में कर सकते हैं आप। ओके सर। फिर और बहुत सारे योग होते हैं, जैसे आप पंचांग देखते हैं तो बहुत टाइप के योग लिखे होते हैं उसमें, सिद्ध है और बहुत सारे आप देखेंगे, अमृत सिद्ध है, सर्वार्थ सिद्ध है और बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव योग भी लिखे होते हैं। कोई भी आप पंचांग के पेज पलटेंगे तो शुरू में ही जो इनिशियल पेजेस होते हैं उसमें हर साल के योग ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं, तो उसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बट उसको सिर्फ देखना है। तो एक उसमें सिद्ध योग होता है। सिद्ध योग मीन्स कि वट एवर यू डू दैट विल बी कंप्लीटेड। अच्छा योग है एक तरह से। तो ये डिपेंड करता है तिथि और वीकडे के ऊपर जो है। अगर नंदा तिथि मतलब 1-6-11 है और दिन फ्राइडे है तो सिद्ध योग बन जाएगा। भद्रा तिथि है 2-7-12, दिन वेडनेसडे है तो सिद्ध योग बन जाएगा। जया तिथि है 3-8-13 और ट्यूसडे है तब सिद्ध योग बनेगा। रिक्ता तिथि में 4-9-14 में सैटरडे है तब योग बनेगा। और पूर्णा तिथि में अगर थर्सडे है तो ये सिद्ध योग बन जाएगा। तो जो भी ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा पूरे साल में तो वो ऑलरेडी सिद्ध योग के अंडर लिखा हुआ होगा। ऐसे ही अमृत सिद्ध योग होता है। एंड अमृत सिद्ध योग is basically combination of weekday and the नक्षत्र। तो संडे को अगर हस्त नक्षत्र है, मून अगर मंडे को मृगशिरा नक्षत्र है, ट्यूसडे को अश्विनी नक्षत्र है, वेडनेसडे को अनुराधा है, थर्सडे को पुष्य नक्षत्र है, फ्राइडे को रेवती है, सैटरडे को रोहिणी है। तो ये अमृत सिद्ध योग हो गया और भी अच्छा योग हो गया। ऐसे ही आपने देखा होगा सर्वार्थ सिद्धि योग होता है कि सारे काम उसमें सफल होते हैं। तो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव योगा। तो ये भी डे और नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे संडे है तो ये हस्त, मूला, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़, उत्तर भाद्रपद, पुष्य, अश्विनी। इस तरह से वीकडे और ये नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है। अगर इस वीकडे पर ये नक्षत्र होते हैं तब ये सर्वार्थ सिद्ध योग होता है, जो कि एक अगेन इस वेरी पॉजिटिव योगा। ऐसे ही कुछ अशुभ योग भी होते हैं, जबकि हमें उस टाइम में वो कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। तो एक होता है मृत्यु योगा। अगर नंदा तिथि संडे या ट्यूसडे को पड़ती है, भद्रा तिथि अगर मंडे या फ्राइडे को पड़ती है, जया तिथि अगर वेडनेसडे को पड़ती है, रिक्ता तिथि अगर थर्सडे को पड़ती है या पूर्णा तिथि अगर सैटरडे को पड़ती है, तो ये जो योग हम कहते हैं मृत्यु योग कहते हैं इसको। फिर एक दग्ध योग होता है कि अगेन द पर्टिकुलर तिथि एंड द वीकडे। संडे को अगर 12th तिथि है, मंडे को 11th है, ट्यूसडे को 5th है, वेडनेसडे को 3rd है, थर्सडे को 6th है, फ्राइडे को 8th है, सैटरडे को 9th है। तो ये दग्ध योग बन जाता है। दिस इज अगेन ए नेगेटिव योगा। अब आपने चौगड़िया मुहूर्त के बारे में बहुत सुना होगा और ये अक्सर लोग कहते रहते हैं कि चौगड़िया मुहूर्त है और बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। सच ए कॉमन नेम कि एवरीबॉडी नोज कि कुछ चौगड़िया मुहूर्त टाइप की चीज होती है। तो पहली चीज तो यह है कि जो चौगड़िया हैं दे आर बेसिकली 7: अमृत, चर, लाभ, शुभ, उद्वेग, कल, काल, रोग। और जैसा कि नाम के हिसाब से इफ यू सी द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ दिस चौगड़िया, तो सम आर गुड, सम आर बैड। तो इसमें से अमृत, चर, लाभ और शुभ, दीज आर गुड चौगड़िया, और उद्वेग, काल और रोग, these are not good yogas. Now each chogadiya is of 3 ghati and 45 minutes. Each chogadiya is of 3 ghati and 45 minutes, and day is divided into 8 chogadiyas actually, because day is 30 ghati, night is 30 ghati. So we divide each chogadiya into 3 ghati and 45 minutes. So each chogadiya is of 3 ghati and 45 minutes. And if it's the daytime, then the sequence of chogadiya on each day is like this. If it is a daytime, then the sequence of chogadiya on each day, because each day you find 8 chogadiya, each of 3 ghati and 45 minutes. So from 0 to 3:45, then 3:45 to 7:30, 7:30 to 11:15, like this. So up to 30 ghati, that is the daytime. So we have 8 chogadiya in a day. Similarly, when it is at night, then the sequence
changes of Chogadiya. This is the sequence of Chogadiya when it is in night time. So depending on whether we are going to do a work during the day or night, we can see which is the good Chogadiya, which is the auspicious Chogadiya, and during that Chogadiya we can do any type of good work actually. So first thing is the period is fixed, the sequence is fixed, and sequence is not the same for each day. Sequence changes on each day, and not only each day, but also it depends on day or night. If it is the day, then the sequence is different. If it is the night, the sequence is different. But each Chogadiya is of 3 Ghati and 45 pal, not minute, pal actually. तो इसकी बहुत बार बात करते हैं चौगड़िया मुहूर्त की. तो ये एक टेबल है, इस टेबल की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि इस समय कौन सा चौगड़िया चल रहा है, और उसके हिसाब से we can choose the right चौगड़िया for doing any auspicious work actually. और ये बहुत कॉमन है, बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और काफी लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं. अगर जैसे हमने देखा कि अगर कुछ और सब मत देखो और इमीडिएटली कुछ काम करना है तो आप होरा देख लो, पर उस होरा में ये चौघड़िया वो वाले हैं जो बैड वाले हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे? या ऐसा पॉसिबल है भी? हाँ, कई बार होगा ऐसा, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉसिबल व्हाट यू से. तो ऐसे केसेस में अगर कंफ्यूजन होता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं. अगर आप देखते हैं दोनों ही ठीक है तो ठीक है, बट लोग जनरली दोनों देखते नहीं हैं. कुछ लोग जैसे चौगड़िया के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो देखो भाई चौगड़िया ओनली. सम पीपल दे डिपेंड ऑन होरा ओनली, सो दे गो भाई होरा ओनली. बट अगर आपको मालूम है जैसे, और कभी आपको कंफ्यूजन लगे तो अवॉइड करिए उसको. और जब हम लोगों ने लास्ट टाइम जब नवांश चार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर डिग्री हर राशि में, दैट इज नोन एज ए पुष्कर पार्ट ऑफ दैट राशि, और उसके कोरस्पॉन्डिंग नवांश जो होता है दैट इज नोन एज ए पुष्कर नवांश. तो हमने कहा कि हर घंटे में एक पुष्कर नवांश भी होता है. दैट इज अगेन ए वेरी ऑस्पिशियस टाइम. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप उसको कर लीजिए. हर 2 घंटे में एक राशि का पुष्कर पार्ट होगा. तो जब वो राइज करती है राशि, उस डिग्री पर हम आते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं. तो मैनी मेथड जब हम लोग जल्दीबाजी में काम करना पड़ता है, और कोई भी अगर आप यूज करेंगे तो एनीवन इज ओके एक्चुअली. बट अगर कोई कंफ्यूजन है तो देन यू अवॉइड एक्चुअली, क्योंकि अगर आप दोनों तीनों देख रहे हैं तो नेचुरली कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं. सर अब एक और चीज देखिए, जैसे कहीं पे जाकर आपको कुछ काम करना है, मान लो किसी से आपको मीटिंग करनी है, या जैसे इसमें भी था कुछ भी मतलब आपको करना है. हाँ नहीं, घर जाके घर से बाहर जाके आपको करना है, तो कुछ लोग घर से निकलने का टाइम वो ये ऑस्पिशियस देखते हैं, और कुछ लोग वहां पर जब आप जहाँ पे जिससे मीटिंग है वो वाला टाइम देखते हैं, क्योंकि दोनों टाइम आपके ऑस्पिशियस हो. दैट्स नॉट पॉसिबल, मतलब रेयर ही होगा. देखिए हम जब काम करना शुरू किया, जैसे हमने कहा कि आज हमें उससे मिलने जाना है, तो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द हाउस, दैट शुड बी ऑस्पिशियस टाइम एक्चुअली. मिलना तो अलग है, लेकिन जब तक आप शुरू में जब आप काम शुरू कर रहे हैं, बेसिकली वी आर कंसर्न विद दैट टाइम, वो मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्चुअली में. तो जिस टाइम हम घर से निकलते हैं उस काम के लिए, उस टाइम वो टाइम शुभ होना चाहिए. अगर वही टाइम अगर अशुभ होगा तो काम कैसे पूरा होगा? तो मेनली वी आर कंसर्न विद दैट शुड बी ऑस्पिशियस टाइम एक्चुअली. काम तो हमारा वहीं से शुरू हो गया ना, कि वी हैव स्टार्टेड, वी हैव गॉन फॉर दैट पर्पस ओनली. सर अभिजीत मुहूर्त भी नहीं तो अच्छा होता है. अभिजीत मुहूर्त भी अच्छा होता है. हाँ, या देखिए अभिजीत मुहूर्त है. अभिजीत मुहूर्त कब होता है? 12 बजे, 11 साढ़े 11 से 12:30, जब सन पीक पर होता है अपने 11:30 से 12:30 के बीच में होता है. देखिए जो भी मिड डे का टाइम होता है, मिड डे इज नॉट एग्जैक्टली 12 एक्चुअली, इट मे डिफर फ्रॉम डे टू डे. मिड डे से 1 घंटी पहले 1 घंटी बाद में, 1 घंटी पहले 1 घंटी बाद में. मान लो 12 इज अ मिड डे टाइम, लेट्स प्रिज्यूम एक्चुअली, तो उससे 24 घंटे पहले 24 घंटे बाद में, 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद में. तो 1 घंटी पहले और 1 घंटी बाद का जो समय होता है उसको हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं. तो बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े काम उस मुहूर्त में कर लेते हैं. जैसे सिख लोग शादी भी करते हैं, संडे का दिन होता है, सन वैसे पावरफुल होता है, मिड डे पर
जब ये अभिजीत मुहूर्त होता है तो सन इज हैविंग अ मैक्सिमम पावर। तो सन जब इतना स्ट्रॉन्ग है, विच इज द मेन प्लैनेट, विच इज द किंग एक्चुअली, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो अभिजीत मुहूर्त का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। अब let us see the muhurat for marriage. You will get surprised how many things we consider to find out a suitable time for marriage. उसमें 10 चीजें हम कंसिडर करते हैं apart from the normal things. बाकी चीजें तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी जो 10 चीजें हैं which play very important role in selecting a suitable muhurat for marriage. पहला है लात या लत्ता बोलते हैं उसको, सेकंड इज द पाथ, थर्ड इज युति, फोर्थ इज वेधा, फिफ्थ इज जामित्रा, मृत्यु पंचक, एकरगल, उपग्रह, कांति सौम्य एंड दग्धातिथि। तो ये सारी 10 चीजें जो हम कंसिडर करते हैं तब मुश्किल से एक शादी का मुहूर्त निकलता है। फिर भी नहीं चलती शादी। हाँ जी सर, फिर भी सक्सेसफुल हो जाए। हम उसको अपने आप खराब करते हैं। अंकल, एक क्वेश्चन है बिफोर वी डू द मुहूर्त फॉर शादी, कि अगर दो कुंडलियां मिल रही हैं एंड यू नो सन इज स्ट्रांग फॉर द बॉय, जुपिटर वीनस इज स्ट्रांग, जनरली स्पीकिंग इज अ कंपैटिबल, फिर मुहूर्त से क्या निकलेगा अगर दोनों में जनरली कंपैटिबिलिटी है? देखिए, कोई भी शुभ काम करते हैं, इफ यू डू इट राइट टाइम, अब कोई भी अब काम नॉर्मल टाइम में अब राइट टाइम पे नहीं करेंगे तो कैसे सक्सेसफुल होगा वो? नॉर्मली कोई भी काम है, ये तो बेसिक चीज है कि इट शुड बी डन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस आल्सो। तो हम उसका फायदा लेते हैं कि उस टाइम जो हमारा वाइब्रेशंस है और जो टाइम है, प्लैनेट की पोजीशन है वो अच्छी है, तो नेचुरली ये एक उम्मीद की जाती है कि जो हम काम करेंगे उसमें हमें सक्सेस मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो आपने कहा कि कॉम्पेटिबिलिटी तो ठीक है, बट अब मैरिज जो फंक्शन करने जा रहे हैं उसमें कोई बाधा ना आए, उसमें भी तो बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। करेक्ट। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम अच्छे टाइम का और अच्छी जगह का इस्तेमाल करते हैं। So we can say blessing of positive vibes of... नेचुरली कोई भी मतलब उससे मैचिंग से मतलब नहीं है इसका, वो तो मैचिंग तो शादी होगी या नहीं होगी, मैचिंग तो वही रहेगा, लेकिन जो शादी में कोई बाधा ना आए, शादी में तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो इसलिए उसको राइट टाइम पर करते हैं कि शादी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू अंकल। अब पहला है लत्ता दोष। कहते हैं कि हर प्लैनेट जिस नक्षत्र में होता है उससे एक पर्टिकुलर पोजीशन में लात मारता है। लात मारता मतलब उसको खराब करता है। तो अगर कोई भी प्लैनेट मैरिज नक्षत्र को हिट करता है, then it is not considered a suitable मुहूर्त for marriage from the point of view of लत्ता दोष। तो कैसे करते हैं कि जैसे सन है, सन मान लीजिए कि कोई भी किसी भी नक्षत्र में है, तो उससे जो 12th नक्षत्र होगा वहां पर आगे की तरफ, जैसे मान लीजिए कि सन अश्विन नक्षत्र में है, मुहूर्त के टाइम जो है, सन जो है जब जिस टाइम हमने कोई मुहूर्त का टाइम चूज किया अश्विनी नक्षत्र में है, तो उससे 12th नक्षत्र कौन सा हुआ? मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी हो गया, उत्तर फागुनी। तो ये उत्तर फागुनी को लात मारेगा। तो इसका मतलब उत्तर फागुनी नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। उस जो जिसमें लात मार रहा है उसमें जो है कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस। तो हर नक्षत्र, हर प्लैनेट, जैसे सन जो जिसमें भी नक्षत्र में होगा उससे 12th में फ्रंट साइड में, मून है 22nd में बैक साइड से, मार्स है 3rd है फ्रंट साइड, मरकरी 7th है बैक साइड, जुपिटर 5th में है फ्रंट साइड, विनस 8th में है बैक साइड और 9th में है फ्रंट साइड। तो क्या रिजल्ट होते हैं? हाँ, एक जन्म कुंडली का बता रहे हैं आप? तो क्लियर नहीं हुआ। जन्म कुंडली नहीं, मुहूर्त। मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं, जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहे। मान लीजिए कि हमने एक टाइम सेलेक्ट किया, वी वांट टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर मैरिज, ठीक है? तो उसमें हमने देखा कि कौन कौन से प्लैनेट किस किस नक्षत्र में है। हमने जो कुंडली बनाई उस पीरियड की, जब
हाँ ट्रांजिट की, या जो हम जो टाइम हमने सेलेक्ट किया उसकी हमने कुंडली बनाई। अब कुंडली में देखा कि कौन कौन से प्लैनेट किस नक्षत्र में है और किस किस नक्षत्र को लात मारेंगे। इसकी टेबल के हिसाब से किस किस नक्षत्र को लात मारेंगे। तो उन नक्षत्रों में कोई प्लैनेट का प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। कुंडली से कोई मतलब नहीं है इसका। दिस इज ओनली अबाउट द टाइम। ऑल जनरल सर, इसमें इंडिविजुअल कुंडली पे डिपेंड कुछ नहीं करता। कुंडली से कोई मतलब नहीं है इसका। ओके। We are trying to find out a suitable time. तो ये इसको हम कहते हैं लत्था दोष। ऐसे ही पाथ दोष होता है कि अगर सन इन पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है, इन नक्षत्रों में, और अगर टाइम जो आप मैरिज का चूज कर रहे हैं अगर वो नक्षत्र ये वाले हैं, मतलब मून अगर इन नक्षत्रों में है, तो कहते हैं पाथ दोष होता है कि सन इन सम नक्षत्र हैज बैड इन्फ्लुएंस ऑन सम अदर। अगर सन इन नक्षत्रों में है तो मून शुड नॉट बी इन दिस नक्षत्र। सन अगर मुहूर्त के टाइम अगर इसमें से मान लीजिए कि ये 5 नक्षत्र हैं, इसमें से अगर किसी भी नक्षत्र में पड़ रहा है तो मून जो है रोहिणी नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर सन इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में है तो मून शुड नॉट बी इन द मृगशिरा नक्षत्र। तो ये है पाथ दोष। Sun in some nakshatra has bad influence on some other nakshatras. So this is only for moon, uncle, or any planet? Moon. Okay. Nakshatra of marriage, when we are saying nakshatra of the marriage, it means we are talking of nakshatra of the moon only. I see. Okay. Yeah. And this is the nakshatra of the sun at the time of we are the time we are selecting for the marriage. Yuti dosh. Again, any planet in the nakshatra of marriage is yuti dosh. मान लीजिए आपने कोई भी समय चुना शादी के लिए और उसमें देखा कि जो मैरिज का नक्षत्र है उस टाइम का नक्षत्र कौन सा है, तो उस नक्षत्र में अगर कोई भी प्लैनेट का प्लेसमेंट है तो दैट इज बेसिकली युति दोष। एंड दिस युति ऑफ वीनस इज मोस्ट डेंजरस। अगर वीनस है ऐसे नक्षत्र में तो और भी ज्यादा वो खराब है। और कुछ केसेस में ये दोष रिड्यूस हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है, नलिफाई हो जाता है कि अगर मून अगर मुहूर्त के टाइम अगर अपने फ्रेंडली या एक्सॉल्टेड साइन में है, या जुपिटर इज इन द केंद्र फ्रॉम द लग्न और मून हैज द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। अगर मून स्ट्रांग है तभी भी ये जो दोष है वो नलिफाई हो जाता है या मिटिगेट हो जाता है। ऐसे ही जामित्रा दोष होता है। Any planet in the 7th from the ascendant, any planet in the 7th from the ascendant or moon at the time of marriage, कि मैरिज के टाइम जो भी आप कुंडली बनाएंगे उस कुंडली में अगर कोई भी प्लैनेट या तो असेंडेंट से या मून से अगर 7th हाउस में होता है तब हम इसको जामित्रा दोष बोलते हैं। एंड दिस इज फुल दोष if the difference is exactly 180 डिग्री। अगर लग्न और मून का और उस प्लैनेट का जो डिफरेंस है एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा तो और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इसमें भी जो ये दोष है वो कम हो जाता है या नलिफाई हो जाता है अगर मून बहुत स्ट्रांग है एंड प्लैनेट कॉजिंग एस्पेक्ट दोषा है जन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। जो अगर प्लैनेट कोई 7th हाउस में प्लेस्ड है उसके ऊपर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तभी भी ये नलिफाई हो जाता है। So if Jupiter itself is placed there, then क्या चीज? So Jupiter ही है वहाँ Jupiter in the 7th 7th house is never supposed to be good planet actually. हाँ तो we will ignore aspect that is time. good, but 7th position of Jupiter is not a good position actually. Then मृत्यु पंचक और बाण दोष कहते हैं कि if sun at the time of marriage is either at 1 degree, 10 degree, 19 degree or 28 degree in any sign, that is supposed to be inauspicious. So at the time of marriage, sun degree should not be either of these 4 degrees. Then Ekargal dosh. Ekargal dosh is basically one is the inauspicious yoga. हमने योगा देखे 27 है और 27 में कुछ अशुभ योग होते हैं, कुछ शुभ योग होते हैं। तो ये अशुभ योग हैं व्याघात, गंड, व्यतिपात, विषकुंभ, शूल, वैद्रति, वज्र, परिधि और अतिगंड। अगर इनमें से कोई भी योगा प्रिवेल कर रहा है उस टाइम एंड
नक्षत्र ऑफ द मून फ्रॉम नक्षत्र ऑफ द सन इज ऑड नंबर, कि अगर हम सन के नक्षत्र से मून के नक्षत्र तक काउंट करें और अगर ऑड नंबर आता है तो, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन योग भी ये अशुभ योग होना चाहिए, तब ये एक अर्गल दोष बनता है। उपग्रह दोष, उपग्रह दोष कहते हैं कि मून नक्षत्र फ्रॉम द सन नक्षत्र, ये नंबर नहीं होना चाहिए। सन नक्षत्र से अगर हम मून नक्षत्र काउंट करेंगे तो ये नंबर नहीं होना चाहिए। फिर है क्रांति सौम्य। सर जैसे हम इस सन के नक्षत्र से काउंट करते हैं तो सन जिस नक्षत्र में वो 1 हो गया, जैसे हम हाउसेस काउंट करते हैं वैसे वो भी हम बिल्कुल करेंगे, सेम प्रोसीजर, उसको भी इंक्लूड करेंगे जिसमें है 1 और फिर नेक्स्ट उसी को सेकंड उसको ऐसे। इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल दोनों को इंक्लूड करेंगे। ओके। फिर है क्रांति सौम्य। अगर कहते हैं कि सन मून जो इस पेयर में नहीं होनी चाहिए, सन एंड मून दे शुड नॉट बी इन दीज पेयर्स, जैसे एरीज लियो है, 2-10 है, 3-9 है, या 4-8 है, 6-12 है, या 7-11 है, तो ये सन मून जो है इस पेयर में इन साइंस का जो रिलेशन है उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो दग्धा तिथि है कि हम सन की राशि और तिथि, अगर सन इन राशियों में है जैसे 1 और 4 में, एरीज एंड कैंसर में, तो तिथि शुड नॉट बी 6 तिथि। ऐसे ही अगर सन 2 और 11 राशि में है तो तिथि 4 नहीं होनी चाहिए। सन अगर 3rd और 6th साइन में है तो तिथि शुड नॉट बी 8 तिथि। सन अगर 5th और 8th साइन में है तो तिथि शुड नॉट बी 10th तिथि। ऐसे ही अगर सन 7th और 10th साइन में है तो तिथि शुड नॉट बी 12, और अगर सन 9 और 12 साइन में है तो तिथि शुड नॉट बी 2nd तिथि। So these are basically दग्धा तिथि। Then वेद। इसमें कहा है कि ये जो अभी हम टेबल देखेंगे कि जो कुछ पेयर ऑफ नक्षत्र हैं वो एक दूसरे का वेद करते हैं। तो मान लीजिए कि मैरिज का कोई नक्षत्र हमने निकाला, जो टाइम हमने सेलेक्ट किया मैरिज के लिए कोई नक्षत्र है, और उससे जो दूसरा नक्षत्र वेद कर रहा है उसमें अगर कोई प्लैनेट है तो हम कहते हैं कि ये दोष लग जाता है। इफ एनी प्लैनेट इज प्रेजेंट इन द नक्षत्र प्लेस्ड अपोजिट टू द नक्षत्र ऑफ मैरिज। कैसे? ये देखिए, ये हम लोग इस तरह का ये जो बनाते हैं, और यहाँ पर हम अश्विनी से शुरू करते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, और इसमें इंक्लूडिंग अभिजीत नक्षत्र, ये 28 पूरे हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि मैरिज का नक्षत्र हमने कोई भी चूज किया, मान लीजिए अश्लेषा चूज किया है अश्लेषा नक्षत्र आपने चूज किया मैरिज का, तो इसको जो वेद कर रहा है कौन सा है? अश्लेषा था, धनिष्ठा। तो धनिष्ठा नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। दैट इज द पर्पस। कि जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर भाद्रपद आपने चूज किया मैरिज के टाइम के लिए, तो यहाँ पर हस्त नक्षत्र में कोई प्लैनेट प्लेस नहीं होना चाहिए। तो ये नक्षत्र कहते हैं आपस में एक दूसरे का वेद करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो मुहूर्त का है नक्षत्र है उसके अपोजिट नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। और इसको जो इसका इफेक्ट है वो कम हो जाता है कि बेनिफिक प्लैनेट है इन द मैरिज लग्न। जब मैरिज के समय अगर आपने लग्न चार्ट बनाया तो उसमें लग्न में बेनिफिक प्लैनेट है। लॉर्ड ऑफ लग्न ऑफ मैरिज, मैरिज मीन्स द टाइम ऑफ मैरिज is in the 11th with the benefic or aspected by benefic. या मैरिज इन द होरा ऑफ बेनिफिक प्लैनेट, जो टाइम आपने सेलेक्ट किया वो एक बेनिफिक प्लैनेट का हो रहा है, या मून स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब केसेस में जो वेद है वो कम हो जाता है। तो इतनी सारी चीजें हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल थिंग दैट वी सी, जो बाकी हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, तिथि वार नक्षत्र योग करण, और जो कंबस्ट होते हैं वीनस या जुपिटर, तारा डूबना, ऑल दोस थिंग्स वी कंसीडर।
and along with that we consider these things also. और अगर आप उसमें देखेंगे पंचांग में तो शादी के मुहूर्त लिखे होते हैं, एंड शादी के मुहूर्त जो है दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर मून राशि. हर मून राशि के लिए लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग ये मुहूर्त लिखे होते हैं. तो हमें लड़के और लड़की दोनों का राशि देखनी है और ये देखना है कि दोनों के लिए कॉमन डेट कौन सी है. तो वो हम उसमें से कोई भी डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं मैरिज के लिए. तो जो चीजें हैं जो मैरिज के टाइम को देखने के लिए, कुछ चीजें जैसे वीनस और जुपिटर शुड नॉट बी कंबस्ट, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसा हम लोगों ने देखा भी कि 15 दिसंबर के बाद इस बार और अभी तक टिल द एंड ऑफ अप्रैल देयर वर नो मैरिजेस बिकॉज आइदर जुपिटर वाज कंबस्ट और वीनस वाज कंबस्ट. तो इस पीरियड में कोई शादी वादी नहीं हुई क्योंकि शादी के लिए जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है और वीनस की ब्लेसिंग भी बहुत जरूरी है. ये दोनों प्लैनेट कम से कम स्ट्रांग होने चाहिए. तो जब अगर ये दोनों में से कोई भी प्लैनेट अगर कंबस्ट है तो हम शादी नहीं करते, या शादी क्या मतलब कोई भी ऑस्पिशियस फंक्शन नहीं करेंगे. और उसको हम तारा डूबना कहते हैं कि तारा डूबा हुआ है. जनरल जो भाषा है उसमें यही हम टर्म यूज करते हैं कि तारा डूबा हुआ है. और तारा डूबने का मतलब यही है कि या तो जुपिटर कंबस्ट है या वीनस कंबस्ट है. सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी पूछिए. सर जैसे ये सरदार लोग होते हैं या और भी कास्ट में, तो वो तो कुछ भी नहीं देखते और फिर भी उनकी मैरिज सक्सेसफुल होती है. जी. तो वो क्या है मतलब और भी जो भी क्रिश्चियन होते हैं या जो भी और कास्ट होती हैं, तो फिर वो भी तो सक्सेसफुल होती है ना सर? देखिए पहली चीज तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जैसे मैंने कहा कि सिख लोग हैं जी, ये संडे को मैरिज करते हैं. पहली चीज जी, जी, तो दे सी द कन्वीनियंस ऑफ एवरी पर्सन. जी, They see the convenience of every person. From that point of view, it's a very good thing actually. और secondly क्या है, अभिजीत मुहूर्त होता है उस टाइम जब शादी करते हैं. जी, जी, जी. अभिजीत मुहूर्त होता है. अभिजीत मुहूर्त इसीलिए कहते हैं कि because at that time sun is the strongest planet. मिड डे पर सन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है और खास तौर से संडे के दिन, संडे तो लॉर्ड है उसका. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मुहूर्त. अगर मुझे ये बताइए कि जो किंग है, सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, किंग अगर फेवरेबल है आपके लिए तो कौन नुकसान आपको पहुंचा सकता है? तो मैं यही कह रही थी कि हिंदू लोग भी ऐसे कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, अगर कर सकते हैं तो करिए, उसमें क्या नुकसान है. अगर जैसे हम हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ जुपिटर अगर किसी लड़की का बहुत अच्छा है, एक्सॉल्टेड है, इट इज वेल प्लेस्ड, आंख बंद करके आप शादी कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है. किसी लड़के का सन अगर बहुत अच्छा है, वो आंख बंद करके आप शादी कर लीजिए, क्या जरूरत है जो बेकार की चीजें जो बिल्कुल ऑब्सोलीट हैं, आउटडेटेड हैं, उनको हम अडॉप्ट करते हैं, ना कि जो सही चीजें हैं जो आजकल के टाइम में होनी चाहिए उसको हम करें. बट जैसे तारा डूबने वाली चीज है जो हम बोलते हैं जुपिटर या वीनस कंबस्ट हैं, बट जैसे जया जी बोल रही हैं कि उस चीज को काफी रिलीजन के लोग अदर देन हिंदू नहीं देखते, तो भी वो सक्सेसफुल होते हैं. तो हिंदू क्यों इतना चीज देखते हैं तारा डूब गया? ये मत कहिए कि नहीं देखते हैं, वो अपना अलग अलग ढंग से देखते हैं. अलग अलग जो रिलीजन है या जो सेक्ट है उसमें अलग अलग चीजों की तरह से देखा जाता है. मे भी किसी और एंगल से देखते होंगे वो, लेकिन कंसिडर सब करते हैं. मैंने कहा कि इवन चाइना में अभी एक सर्वे आया था कि मोर देन 80% पीपल दे कंसल्ट एस्ट्रोलॉजी, but only that may be slightly different. Chinese astrology is not the same as we do actually. तो उसमें कुछ और कंसिडरेशन होंगे या किसी और तरीके से देखते होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बिना किसी मुहूर्त के देखे काम करता है. सब लोग देखते हैं, किसी ना किसी ढंग से देखते हैं. तो अगर जैसे हम अभिजीत मुहूर्त की बात कर रहे हैं, संडे अभिजीत मुहूर्त, उसमें मैरिज कर सकते हैं, तो अगर ये है जुपिटर वीनस जिस पीरियड में कंबस्ट हैं, जिन मंथ्स में, तो क्या उसमें भी फिर हम कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में? देखिए मैरिज, खास तौर से मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो मैरिज के लिए जुपिटर एंड वीनस, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स. इमरजेंसी में तो ठीक है कि आपने संडे को कर लिया, लेकिन
अगर हम इनको भी बेटर कर लेंगे या ये प्लैनेट तो जब और अच्छा स्ट्रांग हो होगा जाएगा। तो और अच्छा हो जाएगा। हम्म। तो हम तो ट्राई कर रहे हैं कि उसको बेटर बनाने की, अगर कोई मेथड दूसरा भी है तो उसमें और बेटर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट आजकल कन्वीनियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दोस थिंग्स, तो उसको भी हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अब कौन आना चाहता है कि शादी में 2-3 दिन के लिए कोई आपके घर पर आएगा? Nobody wants actually. तो अभी वैसे जैसे कई केसेस में क्या होता है, नाउअडेज पीपल आर गोइंग फॉर अ ओनली कोर्ट मैरिज। तो जी, कोर्ट मैरिज में तो यू डोंट गेट द ऑप्शन की डेट टाइम आपके अकॉर्डिंग मिले, वो तो जो आपको मिल जाएगा। तो उसमें फिर ये कैसे मैनेज कर सकते हैं ये मुहूर्त वाली उसमें चीज? कोर्ट में क्यों नहीं मिलेगा टाइम आपको अकॉर्डिंग टू योर विश? अच्छा नहीं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग इज इट पॉसिबल? बिकॉज़ क्यों वहां भी होता है, अच्छा जो लोग विश्वास करते हैं दे गो एट फॉर द टाइम ओनली। कोर्ट में तो बहुत आसानी से मिल जाए, कोर्ट में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा। जब डिलीवरी के बट सर टाइम जो आपको टाइम मिल सकता है तो सर कोर्ट जो में तो चीज हाँ, वैदिक नहीं है उसमें वैदिक चीज की रेलिवेंसी खत्म हो जाती है। तो नहीं कोर्ट नहीं नहीं मैरिज इज नॉट वैदिक। नहीं नहीं, नहीं, बट ये वैदिक दैट से सारी एक मतलब चीजें नहीं बंधन तो बंध रहा है। है, बेशक वैदिक से लीगली मतलब है नहीं या होता। कैसे भी है। तो मैरिज इज मैरिज। अब शुभ कोई भी मुहूर्त मेथड हो, आप कहोगे कि मुसलमान की जो मैरिज है वो वैलिड नहीं है, या किसी और धर्म की मैरिज वैलिड नहीं है, वैदिक मैरिज नहीं है, ऐसा नहीं है। इसे बेसिकली सेरेमनी। सर 23 अप्रैल 2023 को बहुत बढ़िया मुहूर्त निकल रहा है, अक्षय तृतीया का दिन है, संडे पड़ रहा है, तो आई थिंक सबसे बेस्ट होना चाहिए इसका मतलब। बिल्कुल, और क्या। तो 23 अप्रैल 2023। आपने तो बड़ी 23 या 22? 23 सर। वो तो बहुत बड़ा आगे दूर है। पहुंच गए। तो पीछे से 1 साल आ रहा है उसके अक्षय पीछे तृतीया तो 22 में भी आएगा ना, 22 वाला क्यों सर छोड़ लेकिन दिया सर आपने? ट्यूसडे पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा। हाँ, अगर हम वो संडे को क्लब कर रहे हैं इस बात से बिल्कुल तो बिल्कुल। तो कितने लोग खुश होते हैं कि वो बहुत कन्वीनियंट है सबके लिए, संडे को दिन बहुत अच्छा चूज किया। हम लोग जिसको भी शादी का कार्ड आता है तो बहुत खुश होते हैं अगर संडे को होती है तो सर एक क्वेश्चन है जी। सोशल मीडिया में बड़ा घूमता रहता है कि भगवान राम का जो है वो राज्याभिषेक भी बड़ा मुहूर्त निकाल के किया गया और शादी भी बड़े तरीके से और मुहूर्त निकाल के की गई, बट दोनों फेल हो गई। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या फेल हो गया? दोनों ही चीजें। राज्याभिषेक तो हुआ ही नहीं खैर। हाँ, वो राज्याभिषेक करने के लिए थोड़ी शादी कर रहे थे वो। नहीं, दोनों चीजों का मुहूर्त निकाला गया, शादी देखिए, का जब भी। ये भगवान अवतार लेते हैं तो उनका पर्पस कुछ और होता है। आज भी आप उनको याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो आज मुहूर्त की भी रेलिवेंस क्या आज भी रियलिटी में है? हाँ जी। उनके मुहूर्त की पर्पस के अकॉर्डिंग मुहूर्त होगा ना, उनका पर्पस सर्व कर रहा होगा वो मुहूर्त। पर्पस देखिए ना कि उन्होंने क्या क्या काम किए, आज आप उनको याद कर रहे हैं। सर अगर वो दोनों हो जाते तो आज रामायण नहीं हाँ, पढ़ रहे होते। आज पूजा कर रहे हैं आप उनकी। वो एक अलग चीज हो जाती है, बट हम कह रहे हैं कि उस मुहूर्त में कोई भी काम नहीं, किया जाए देखिए वो बड़ा देखिए सक्सेसफुल होता है। देखिए सिर्फ यहाँ रहे उसके पीछे क्या आपका पर्पस क्या है? जो भगवान का पर्पस है वो आपका पर्पस नहीं हो सकता। जो अवतार लिया, इनकारनेशन लिया, दैट इज विद अ डिफरेंट पर्पस। तो उन्होंने पर्पस जो अपना सॉल्व करना था उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ संदेश देना चाहते होंगे आपको जो है, तो वो चीज आप अपने ऊपर काउंट नहीं कर सकते कि उसको आप अप्लाई करना शुरू कर दो। एंड सेकेंडली, यू डोंट नो कि whether it's a mythology or it's a real story, you don't know। तो उन चीजों को जो हमें पता नहीं है उसके ऊपर तो, और दूसरा भगवान की हम बात करते हैं तो नेचुरली अवतार होता है, दैट इज विद अ डिफरेंट पर्पस आल्सो। तो मैरिज के टाइम पे भी डिफरेंट चीजों के अलग अलग तो मुहूर्त तो आप टाइम। कहेंगे कृष्ण भगवान ने भी यही किया, मैरिज किसी और से की। तो उनका पर्पस कुछ और है, वो कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट पर्पस। फिर जो ये टाइम है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, आप देखिए कि जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक का जो पीरियड है करीब करीब, उस पीरियड में कोई शादी नहीं होती। और कहा जाता है कि देव सोए हुए हैं, रेनी टाइम होता है, देव सोए हुए हैं, तो लॉर्ड विष्णु गोज टू स्लीप एक्चुअली। तो ये कैसे पॉसिबल है? एंड बेसिकली इट्स ऑल माइथोलॉजी। और जब हम माइथोलॉजी का वास्ता देते हैं, धर्म का वास्ता देते हैं, तो हर आदमी एक्सेप्ट कर लेता है और बड़ा इजीली वो एग्री कर लेता है। अगर हम किसी से कहें कि बरसात का समय है,
हम शादी करेंगे तो इनकन्वीनियंस होगी, तो नोबडी विल एक्सेप्ट। तो हमने ये कह दिया, क्योंकि पहले टाइम में ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं होते थे जो आज अरेंजमेंट है, बैंकेट हॉल है, या सब लोग खुले मैदान में शादियां होती थी, कोई ऐसे अरेंजमेंट नहीं हुआ करते थे कि जहाँ बरसात को हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। तो उन्होंने कहा कि जो ये 4 महीने का टाइम है, इसको एक तरह से हॉलीडे डिक्लेयर कर देते हैं कि कोई आदमी फिर शादी करेगा ही नहीं, किसी को इनकन्वीनियंस होगी नहीं जो है। तो ये बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ बरसात, रेनी सीजन होता है हमारा ये 4 महीने का, तो उसमें लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। बट आज पोजीशन चेंज है पूरी की पूरी जो है। आज तो कोई बरसात हो या कोई भी हो, हम बड़े आसानी से शादी कर सकते हैं बिना किसी इनकन्वीनियंस के, तो कर सकते हैं आजकल, क्यों नहीं करते? लोगों को चेंज करना चाहिए। बट ये पुराने नियम बने हुए हैं, उसी पर हम लोग चल भी रहे हैं, तो it's not correct. We have to modify actually all these rules. आजकल के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है, पिछले किसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं, एंड आई टोल्ड यू दैट्स बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस। लेकिन हम किसी से बात करें कि ये इसलिए किया है तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। नहीं करते सर एक्सेप्ट। हाँ, मतलब जैसे धर्म खुद का के वास्ता फैमिली देते हैं, मेंबर्स ही नहीं एक्सेप्ट करते। या तो धर्म का वास्ता देते हैं तो सब लोग मान जाते हैं कि देवता सोए हुए हैं, तो अगर आप करोगे तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो अब लोग डरने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बट दैट इज नॉट करेक्ट, दैट वाज डन विद अ सर्टेन पर्पस, कि पहले टाइम में जो है। ऐसे ही आप देखते हो कि जब सन सेजिटेरियस साइन में हो या पाइसेस साइन, सेजिटेरियस साइन में कब होगा सन? सितंबर अक्टूबर के अराउंड। डोंट से लाइक दिस। नहीं सॉरी नो दिसंबर जनवरी, सीधा 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, दिसंबर जनवरी के बीच में। 15 दिसंबर से 15 जनवरी का पीरियड है। और पाइसेस में कब होगा? फेब टू मार्च, 15 फेब से सर ये मार्च में होगा। 10 फेब टू मार्च। इसमें 3 ऐड करना है आपको खाली, जैसे सेजिटेरियस मतलब 9 साइन, इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। पाइसेस में ऐड करेंगे 3 तो क्या आएगा? 15 मार्च से 15 अप्रैल। मार्च से अप्रैल, 15 मार्च से अप्रैल। हाँ, तो कहते हैं कि जब सन इन राशियों में होता है, या तो सेजिटेरियस में हो या पाइसेस में हो, तो उस टाइम भी शादी का कोई मुहूर्त नहीं होता। आप कोई भी पंचांग को देखिए, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में और 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कोई शादी का मुहूर्त नहीं अब होता। इसका क्या रीजन है? हाँ, दिसंबर टू जनवरी तो विंटर्स है, वो समझ में आता है, फिर भी मार्च 15 मार्च टू अप्रैल समझ में नहीं आया। हाँ, अभी समझाते हैं आपको। तो पहला तो सेजिटेरियस, और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होता है, आप ये भी देखिए, और कहीं नहीं होता एक्चुअली में। और मैंने तो जब मैं पढ़ता था तो बहुत लोगों से पूछा कि मैंने कहा आप क्यों नहीं शादी करते 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में जो है। और सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर दे सेड कि नहीं, ये तो कोई तारा डूबा रहता है या कुछ ऐसा होता है। नोबडी कुड आंसर एक्चुअली, और नेचुरली वो विश्वास नहीं होता कि ये क्यों, मतलब देयर हैज टू बी सम वैलिड रीजन एक्चुअली। तो हमारे एक जो पढ़ाते थे डॉक्टर गोला, एक्चुअली वाज वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, तो उसने कहा जान साहब मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं करते एक्चुअली में। वो कहते हैं कि विंटर में जो नॉर्थ इंडिया में जब मैक्सिमम विंटर का टाइम होता है, बहुत सर्दी का, जिसको हम बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज्यादा उस ठंड का समय जो होता है, और पहले टाइम में होता है। हाँ, जैसे चिल कहते हैं बिल्कुल जो है। तो जैसे पहले बरसात में हम लोग कन्वीनियंस हुआ करती थी, ऐसे ही अगर उस टाइम शादी करेंगे तो बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस होगी। तो इस पर्पस के लिए वो टाइम फिर अगर हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि पहले टाइम में आप देखते हैं कि हम किसी के घर पर भी जाते थे तो अपना इवन बेडिंग वी यूज्ड टू टेक विद अस एक्चुअली, क्योंकि सारे अरेंजमेंट नहीं होते थे। तो ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी जो कि मैक्सिमम कोल्ड का टाइम है, तो उस इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए आपने ये कह दिया। सेकंड कहा कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक वो फसल काटने का टाइम होता है। आप देखिए कि उस पीरियड में नॉर्मली फसल कटती है, तो नेचुरली आप फसल कटना छोड़कर आप शादी जैसे काम में तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो नेचुरली उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि फिर वो बरसात शुरू हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दूसरी फसल उनको बोनी पड़ती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया
कि फसल काटने का समय है तो उस टाइम में डिस्टरबेंस ना हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर ओनली, तो उसको भी मना कर दिया गया। अब पोजीशन चेंज हो गई है दोनों में जो है, और इसलिए आई डोंट थिंक कि देयर शुड बी एनी रीजन कि हम इस पीरियड में शादी ना करें, क्योंकि बहुत से लोग आते भी हैं तो मैं कहता करो, इसमें क्या बुराई है। फॉरेन से काफी लोग आते हैं कि हमें यही छुट्टी मिली है, यही टाइम है हमारे लिए सुटेबल, तो हम इसी टाइम में शादी करना चाहते हैं, तो करिए। 15 दिसंबर से 15 जनवरी में क्या नुकसान है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन तो नहीं है। बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग दिस टू इन एवरी कॉन्फ्रेंस एंड सो फार नो गुड आंसर, नो गुड से कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, या कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन किसी ने बताया हो कि ये रीजन है इसलिए हम शादी नहीं करते। बट लोगों को पता नहीं ये सब चीजें जो है कि ये कन्वीनियंस के पर्पज के लिए किया जा रहा है, ना कि और किसी कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के हिसाब से। बट आप किसी से भी पूछिए वो क्या कहेगा कि सन जो है वो जुपिटर के साइन में कंबस्ट हो गया, सन पाइसेस के साइन में, ये भी जुपिटर का साइन है, तो वो कंबस्ट हो जाता है। अरे सन कंबस्ट क्यों होगा, जुपिटर इज अ फ्रेंड ऑफ सन, इट इज इन अ परफेक्ट गुड पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन। वो कहते हैं नहीं कम वो हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। उनका जो आर्गुमेंट होता है कि सन अगर सेजिटेरियस में जाएगा या पाइसेस में जाएगा तो जुपिटर कंबस्ट हो जाता है, उनका कहने का मतलब ये होता है। दैट इज नॉट करेक्ट। जुपिटर तो कहीं और होगा ना उस टाइम पे, नेचुरली वो कंबस्ट कैसे हो जुपिटर कहीं जाएगा? और होगा, और सन तो अपने फ्रेंडली साइन में जा रहा है, सन इज मोर कंफर्टेबल। सन तो अपना इनेमिकल साइन में तो नहीं जा रहा। बट जनरली जो मैंने देखा, जो सुना, वो लोग यही कहते हैं कि जब सन सेजिटेरियस और पाइसेस में जाता है तो जुपिटर कंबस्ट हो जाता है। दिस इज द आर्गुमेंट दे गिव मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली, व्हिच इज नॉट वैलिड, इज नॉट करेक्ट आल्सो। तो इस पीरियड में भी हम तो सर वीनस वाला साइन भी देखना चाहिए इनको। हाँ बिल्कुल, फिर वीनस को भी देखो, वीनस भी अगर जाएगा इन साइन में तो उसको भी कहो कंबस्ट हो जाता है, 2 या 7 नंबर में जाएगा तो कंबस्ट हो जाएगा। बट ये कोई वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, बट बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो दैट्स व्हाई दे कीप ऑन आर्गुइंग लाइक दिस कि जुपिटर कंबस्ट हो जाता है। अनिल जी, आजकल सन सैजिटेरियस में आ रहा है। हाँ जी, आजकल सन जो है सैजिटेरियस में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक रहता है। जी बिल्कुल। मे बी 100 इयर्स बाद तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग तो मूव करते हैं ना साहब, वेस्टर्न वाला कांस्टेंट है, हम लोग तो मूव कर जाएंगे इसको। नहीं, कितना मूव करोगे आप? ये देखिए कि जो साइकिल है, अर्थ जो रोटेट कर रही है, वो तो उतना ही टाइम लगा रही है हर बार। सन ईच ईयर विल कम इन द एरीज साइन ऑन 15th of April ओनली, उसका तो कोई चेंज नहीं होगा। सर 72,000 इयर्स में हम पूरा 360 मूव कर जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कितने सालों के बाद जो है, बट वी हैव टू सी द सेम पोजीशन कि जब भी मान लो अगर मूव भी करते हैं तो ये तो पता ही है ना कि हमें किस दिन जाएगा सन सेजिटेरियस साइन में, तो उस दिन हम जो है उसको अवॉइड करें। बट क्योंकि हम 72,000 ईयर्स के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो प्रेजेंट जो हम लोग देख रहे हैं, तो अभी जो है ये टाइम मैक्सिमम कोल्ड, और ये चीज सिर्फ आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया में ही होती है और कहीं नहीं होती, और कहीं इसको बैन नहीं किया गया इस टाइम को जो है। So, I mean, sir, 100 इयर्स बाद कोल्ड नहीं रहेगा इस टाइम में। आफ्टर 100 इयर्स सैजिटेरियस में दिसंबर में नहीं आएगा, मे बी इट बिकम इन फरवरी। आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी चेंज होता है एक्चुअली में। और आप देखो पिछले 50 साल का पंचांग उठा के देखिए आप, तो 100 का नहीं, एंड वी हैव दैट 100 इयर्स एफएमआरईज आल्सो। तो आप 100 साल की एफएमआरईज देख लीजिए, मुझे बताइए कितना चेंज हुआ है। कल आप देख के आइए उसमें इंटरनेट पे, एंड देन यू टेल मी हाउ मच इट चेंज्ड एक्चुअली। आप भी सरप्राइज करेंगे कि इवन जो सनराइज और सनसेट का टाइम होता है, ईयर आफ्टर ईयर इट विल रिमेन द सेम। हार्डली बहुत आएगा तो 1 आध मिनट का डिफरेंस आएगा, और बिल्कुल भी टाइम में चेंज नहीं होता। सनराइज का टाइम 50 साल पहले भी उतना ही था दिल्ली में, आज भी उतना ही है। और आप देख सकते हो एफएमआरईज आपके पास है 100 साल की, या इंटरनेट से आप देख लो कि 100 साल में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, सन जो सेजिटेरियस में किस डेट में जा रहा है, दैट यू कैन सी। बट इन माय ओपिनियन देयर वोंट बी एनी चेंज एक्चुअली। 1 आध दिन का कोई अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन
eldest son or daughter, this is also a belief actually, I don't know what is the reason actually, the eldest son or daughter should not be married when sun is in the Taurus sign. Sun in the Taurus sign means कौन सा महीना in Hindi? ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना होता है. तो somehow they have related with the ज्येष्ठ with the ज्येष्ठ the son or the daughter actually. तो कोई उसका भी कोई ऐसी वैलिडिटी नहीं है कि उन्होंने somehow किसी ने कनेक्ट कर लिया होगा, ज्येष्ठ का महीना है तो ज्येष्ठ बच्चा जो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए. तो उसके बेसिस पर है कि जो पंडित लोग कहते हैं कि जो एल्डेस्ट सन या डॉटर होता है उसकी शादी ज्येष्ठ के महीने में नहीं होनी चाहिए. दिस इज अगेन ए बिलीफ, क्योंकि इसको मानते हैं काफी लोग और इसके ऊपर बिलीव भी करते हैं. देन एक गोदिल मुहूर्त होता है जो आप लोग पूछ भी रहे थे उस दिन. गोदिल मुहूर्त होता है एंड गोदिल मुहूर्त इज हाफ घटी बिफोर एंड आफ्टर सनसेट. जब सनसेट का टाइम है उससे आधा घटी पहले, आधा घटी 12 मिनट पहले, 12 मिनट बाद में एक्चुअली में. तो इसको भी एक मुहूर्त मैरिज का अच्छा मानते हैं. अगर कोई मुहूर्त अवेलेबल नहीं है या कोई इमरजेंसी है तो उस टाइम में हम जो सनसेट हो रहा है उससे आधा घटी पहले और आधा घटी बाद में भी जो है वो शादी कर सकते हैं. और इसमें ये कहा कि थर्सडे के दिन बिफोर सनसेट एंड सैटरडे के दिन आफ्टर सनसेट जो 12 मिनट का है वो टाइम ऑस्पिशियस नहीं माना गया. तो थर्सडे और सैटरडे को अगर गोदिल मुहूर्त देख रहे हैं तो सैटरडे को बिफोर सनसेट और सैटरडे को आफ्टर सनसेट का जो 12 मिनट है वो ठीक नहीं है. तो these are all the considerations that we have while selecting the proper time for marriage actually. और जैसे मैंने कहा कि पंचांग में ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है considering all these aspect. तो अब पंचांग से हर साल में मुहूर्त जो देख सकते हैं कि कौन सा मुहूर्त या कौन सी डेट आपके लिए सुटेबल है तो उस दिन आप शादी कर सकते हैं. ऐसे ही हर चीज के मुहूर्त में कुछ हम लोग जैसे मैंने कहा तिथि वार नक्षत्र योग करण वगैरह का इस्तेमाल सर इसमें मैरिज में काफी सारी चीजें होती है, एक्टिविटीज होती है जिनका अलग अलग टाइम मुहूर्त निकाल के दिया जाता है. तो वो कैसे निकालते हैं? जैसे बोलते हैं रिंग सेरेमनी का टाइम ये मुहूर्त है, जयमाला का ये मुहूर्त है, फेरों का ये मुहूर्त है, अलग अलग टाइम. पहली चीज तो ये है कि ये सब चीजें रात में होती हैं तो कोई मुहूर्त निकाली सब बेकार है वो तो, क्योंकि मैरिज को हमने कहा कि तो एक रिलीजियस फंक्शन है, ऑस्पिशियस फंक्शन है और कोई भी शुभ काम रात में नहीं होता और ना ही किसी धर्म में होता भी है. हर धर्म में आप देखिए सब जो शादियां होती हैं वो दिन के टाइम ही होती हैं. तो रात में हम पहले शादी कर रहे हैं तो कोई भी आप मुहूर्त निकालिए बिल्कुल ठीक नहीं है. और दूसरा चलो निकालना भी है कि मान लीजिए आज रात को जयमाला भी होनी है, फिर उसके बाद फेरे भी होने हैं, तो उस टाइम देखिए क्या बेस्ट पोजीशन है प्लैनेट की, कौन सा प्लैनेट. और जैसे हम शादी की बात करते हैं ना तो इवन जैसे हम लोग पूजा करते हैं दीपावली की पूजा करते हैं तो आप देखते हैं कि मुहूर्त शाम को ही क्यों निकलता है. और आप हमेशा देखेंगे कि करीब 6 साढ़े 6 बजे से लेके और करीब 8 बजे तक का मुहूर्त होता है. तो व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट? तो पूजा उसी टाइम की जाती है, रात में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है इसलिए. नहीं वही मुहूर्त हमने क्यों चूज किया. और फिर देखते हैं कि कुछ लोग रात में भी पूजा करते हैं, वो करीब दिन रात को 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में करते हैं. वो सर स्थिर लगन को देखा जाता है ना, स्थिर लगन में पूजा की जाए. जो नरेश जी कह रहे हैं कि हमें ऐसे काम जो हम चाहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं उसका हमें बहुत परमानेंट लाभ हो, तो ऐसे काम स्थिर लग्न में किए जाते हैं. कि लग्न आप देखोगे हमेशा जो है वो 6 से 8 के बीच में वो स्थिर लग्न ही होगा, इसीलिए हम उसको पूजा के लिए सेलेक्ट करते हैं. और कोई रीजन नहीं है उसका कि हमने प्लैनेट की पोजीशन देखी. प्लैनेट तो हमें सेलिब्रेट करना ही है उस दिन, कार्तिक की अमावस्या को, बट उस दिन जो भी बेस्ट पॉसिबल टाइम है उस पर्पस के लिए. और क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं सुख समृद्धि के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, हमेशा बनी रहे, तो हम स्थिर मुहूर्त उसको लेते हैं एक्चुअली में. और स्थिर मुहूर्त आप देखोगे वही वो शाम को मिलेगा और फिर रात में 12 बजे के 2 बजे मिलेगा. हाँ जी, वृष लगन शाम को मिलता है और रात को सिंह लगन मिलता है. बिल्कुल. तो उसके बेसिस पर लक्ष्मी स्थिर रहे इसलिए स्थिर लगन का चुनाव किया जाता है. बिल्कुल. तो ऐसे ही अगर शादी भी करनी है
तो शादी में देखिए कि कौन सा लग्न बेस्ट है पहली चीज, और अगर शादी आप परमानेंट तौर पर करना चाहते हैं तो स्थिर लग्न बेस्ट है उसके लिए भी जो है, या लग्न थोड़ा चेंज करके कभी कभी जुपिटर वगैरह की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, तो विच इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ जुपिटर एंड वीनस, दैट टाइम आल्सो यू कैन सेलेक्ट। बट मोस्टली क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं हम इस टाइम फेरे करना चाहते हैं, या इस टाइम जयमाला होनी है, या पंडित तो बता देते हैं कि चलो 8 बजे होनी है जयमाला, होती तो 12 बजे है, तो उसको फॉलो कौन करता है? कोई फॉलो नहीं करता मेरे ख्याल में जो है। और जैसा मैंने कहा कि रात को शादी करना ही एक खराब मुहूर्त हो गया वैसे ही जो है, तो दैट इज नॉट ए गुड टाइम फॉर मैरिज आल्सो। ऐसे ही गृह प्रवेश करते हैं, और गृह प्रवेश के टाइम भी हम लोग तिथि वार नक्षत्र योग करण हम देखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी हम स्थिर प्रकृति का काम करना चाहते हैं तो स्थिर लग्न में हम उसको करेंगे। अगर मान लो हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कौन सी लगन में करेंगे फिर? मूवेबल चर लगन होना चाहिए गुरुजी। हम नहीं चाहते कि गाड़ी खड़ी रहे आपकी, गाड़ी मूव करती रहे। या आप कोई ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप मूवेबल लगन लोगे आप, क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं ना कि एक जगह रुकना चाहते हैं कहीं भी जो है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क that you want to do, you can select the lagna also, whether it's a movable or dual or the fixed lagna actually. ऐसे ही जो गृह प्रवेश करते हैं उसमें बाकी चीजें तो हम देखते ही हैं, एक और पिक्चर एनालिसिस होती है जो उसमें हम क्या करते हैं कि काउंट मून नक्षत्र ऑफ द डे फ्रॉम नक्षत्र ऑफ द सन। सन का जो भी नक्षत्र है जिस दिन हम गृह प्रवेश करने जा रहे हैं वहां से हमें मून के नक्षत्र तक काउंट करना है, वहां से हमें मून के नक्षत्र तक काउंट करना है। और पिक्चर में देखिए अभी नंबर लिखे हुए हैं, 1 माउथ है, देन डायरेक्शन लिखी हुई है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं विच आर एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस पिक्चर एक्चुअली। और इसका पर्पज यही है कि जब आपने काउंट किया फ्रॉम नक्षत्र ऑफ द सन टू द नक्षत्र ऑफ मून एट द टाइम ऑफ गृह प्रवेश, तो अगर 1 आता है तो इट फॉल्स ऑन द माउथ एक्चुअली, तो कहते हैं कि देयर विल बी अ डेंजर ऑफ फायर इन दैट हाउस, तो मतलब उस टाइम आपको प्रवेश नहीं करना है। ऐसे ही अगर 2 to 5 आता है तो इट इंडिकेट द एम्प्टी विदाउट पर्सन्स, आपने घर तो बना लिया लेकिन उसमें लोग नहीं रहेंगे, तो उसको भी हमें अवॉइड करना है, वी डोंट वांट दैट टाइप ऑफ हाउस। अगर 6 to 9 आता है काउंटिंग करके देन प्रॉफिट एंड गेन्स, दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग कि अगर हमने मकान बनाया है गृह प्रवेश करेंगे तो हमें सुख समृद्धि मिलेगी उसमें जो है। अगर 10 to 13 आता है तो अगेन लकी, दैट इज आल्सो गुड। अगर 14 to 17 आता है तो घर में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, तो उसको हमें अवॉइड करना है। अगर 18 to 21 आता है तो लॉस ऑफ चाइल्ड और द मिसकैरेजेस, तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। 20 to 24 होता है तो स्टेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन अगेन इट्स ए गुड एक्चुअली। और अगर 25 to 27 आता है तो दैट आल्सो इंडिकेट स्टेबिलिटी। तो डिपेंडिंग ऑन यू काउंट फ्रॉम नक्षत्र ऑफ सन टू नक्षत्र ऑफ मून एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर, तो दैट आल्सो इज ए बेसिस फॉर डिसाइडिंग द गृह प्रवेश टाइम। इसको हम पिक्चर एनालिसिस कहते हैं, इसको भी हम काफी लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और वैसे तो फॉर एग्जांपल जैसे मून और सन सेम नक्षत्र में है तो हम उसको 1 काउंट करेंगे। 1 हो गया ना फिर तो, हाँ दिस इज 1। अब कुछ मुहूर्त हैं जिसको हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं, कि उसमें हम कोई मुहूर्त नहीं निकालते, वो तिथियां जो हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, अपने आप में सिद्ध हैं, और उसमें हम फिर कोई मुहूर्त या कोई नक्षत्र, कोई योग, कोई करण देखने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप की कोई तिथि पड़ती है तो उसमें हम कोई भी शुभ काम हमेशा कर सकते हैं। और बेसिकली 4 तिथियां हैं जिनको कि बहुत शुभ माना हम लोगों ने जो है, तो उस जो स्वयं सिद्ध नक्षत्र कहते हैं या अलग अलग नाम से लोग जानते हैं उसको जो है, तो
उन तिथियों में हमें कोई नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं। जैसे पिछले बार अभी अक्षय तृतीया पड़ी थी, तो अक्षय तृतीया में देखा आपने कि सारी शादियां वगैरह हुई, या कोई भी जो शुभ काम करना चाहता है वो कर सकता है। और विदित जी जैसे कह रहे हैं कि 2023 में अप्रैल में पड़ेगी, जब संडे का दिन भी होगा। तो एक है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पहली तिथि। दूसरी है वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से बोलते हैं, जो अभी गई थी। और अक्षय तृतीया को जैसे मैंने देखा भी था अभी, तो दैट इज द ओनली डे व्हेन वी हैव दिस सन एंड मून बोथ एक्सॉल्टेड। ऐसा कभी होता नहीं है कि दो अगर इस टाइप के प्लैनेट लाइक सन एंड मून, इफ दे आर एक्सॉल्टेड देन दे कैन नॉट बी अ बेटर पोजीशन देन दैट एक्चुअली। तो एक तृतीया का दिन जो शुभ माना गया, जिसको तो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे अक्षय तृतीया की सिग्निफिकेंस है? इसका कोई ऐसा आई डोंट नो द रीजन एक्चुअली, बट कुछ होगा माइथोलॉजी में। नवरात्रि गुरुजी अपना नववर्ष शुरू होता है ना, हिंदू नववर्ष जो होता है वो उसी दिन शुरू होता है। नहीं, नववर्ष तो शुरू होता है, बट उसको मुहूर्त क्यों कहा? हाँ, मतलब शुभ कैसे हुआ? वो तो है, नवरात्रि भी होते हैं, दिन तो ठीक है मे बी, बट नवरात्रि तो सारे वैसे भी शुभ माने गए अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये वही होता है जिसको एकम भी बोलते हैं कई लोग। हाँ। तो एकम तो आई हर्ड कि ये नहीं शुभ मानते एकम को। नहीं, बट ये जैसे कहा कि नवरात्रि की शुरुआत है या नए वर्ष की शुरुआत है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मे बी दैट मे बी द रीजन एक्चुअली। बट इन चारों को जो है ये बहुत ही एक स्वयंसिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। और अक्षय तृतीया को जैसे कहा, विजयादशमी को जैसे जिस दिन दशहरा होता है उस दिन को भी माना गया, और दीपावली के प्रदोष काल का आधा भाग। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल के संध्या समय होता है ना गुरुजी? हाँ, सनसेट के जो है दो मुहूर्त। दो मुहूर्त का मतलब होता है कि 4 घटी, मतलब एक मुहूर्त हम 2 घटी का मानते हैं, तो 2 मुहूर्त मतलब 4 घटी का समय, जो कि 96 मिनट होता है। एसी बंद कर दिया था। तो इस प्रदोष काल का जो आधा हिस्सा होता है उसको भी हम शुभ मानते हैं। उसमें भी कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें भी हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर जो है, तो जैसे आप देखते हैं कि ये आषाढ़ शुक्ल नवमी है, कार्तिक शुक्ल एकादशी है, बसंत पंचमी है, इसको भी बहुत शुभ मानते हैं। और आप देखते हैं बसंत पंचमी के दिन भी हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, माघ शुक्ल पंचमी। ऐसे ही फुलेरा दूज होता है फागुन शुक्ल द्वितीया, तो उस दिन भी ये काम किए जा सकते हैं। तो नॉर्मली जो ये 8 तिथियां हैं साल में, ये स्वयं सिद्धि मुहूर्त कहते हैं इसमें। तो इसमें कोई भी हमें मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, बिना मुहूर्त निकाले हम लोग कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और नॉर्मली आप देखते भी हैं कि उस दिन शादी वादी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब मुहूर्त नहीं निकलता तो अनसुजा मुहूर्त जिसको हम कहते हैं उसमें हम कर लेते हैं। इसमें टाइमिंग भी नहीं देखते, कभी भी कर सकते हैं। हाँ जी, शादी का टाइम भी नहीं देखना इसमें कभी। नहीं, टाइम देखिए तो और बेटर है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि उस तिथि में भी अगर आपको टाइम देखना आता है या देख सकता है कोई भी, तो इट्स बेटर एक्चुअली। जो भी हम तो अच्छी तिथि तो हमने ली, उस तिथि में भी हमने अच्छा समय चुना तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। अब जैसे नवरात्रि हम कहते हैं कि सभी शुभ होते हैं, नवरात्रि में भी हम कोई भी काम कर लेते हैं, बट उसमें देखिए कि कौन सा नवरात्रि में सबसे अच्छा समय है। अब जो तिथि वार नक्षत्र योगकरण के हिसाब से, या पोजीशन ऑफ मून एंड सन के हिसाब से, या जुपिटर के हिसाब से, तो उसमें करिए तो और अच्छा है। बट नॉर्मली जैसे लोग करते हैं, जैसे नवरात्रि में भी कह देते हैं हम कर लो ये काम शुभ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये दिशाशूल का भी कंसेप्ट है कि कुछ पर्टिकुलर डेज में हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यात्रा नहीं करते हैं एक्चुअली, तो उसको दिशाशूल है, बहुत दिनों से चला आ रहा है पहले से जो है। तो उसमें यही कहा कि मंडे और सैटरडे के दिन ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। मंडे एंड थर्सडे को साउथ ईस्ट में, थर्सडे को साउथ में, संडे एंड फ्राइडे को साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में, ट्यूसडे को नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, और वेडनेसडे एंड फ्राइडे को नॉर्थ ईस्ट में। हमें इन डायरेक्शंस में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। सर किसी का ऑफिस इन डायरेक्शन में हो तो जी, that is not a travel actually, that is a routine type of thing. What we mean by travel is when we are going for a specific purpose.
कि हमें उसमें सक्सेस मिले उस काम में जो है। तो ऑफिस इज नॉट ए ट्रैवल एक्चुअली, इट्स बेसिक रूटीन थिंग एक्चुअली। फिर ये भी कहते हैं कि जो रेजिडेंस ऑफ राहु काल जो साउथ इंडिया में मानते हैं कि सैटरडे के दिन ईस्ट में, फ्राइडे के दिन, जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस लिखी हुई हैं वो राहु काल निवास करता है उस डायरेक्शन में। तो राहु काल के टाइम हम उस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेंगे। ऐसे ही नक्षत्र शूल होता है, जैसे दिशा शूल होती है ऐसे नक्षत्र शूल होता है। कुछ पर्टिकुलर जब नक्षत्र होते हैं तो उस टाइम हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते। ईस्ट में अगर ज्येष्ठ नक्षत्र है, पूर्व आषाढ़ा है, उत्तर आषाढ़ा है तो ट्रेवल नहीं करेंगे। साउथ में अगर नक्षत्र विशाखा है, श्रावण है, पूर्व भाद्रपद है तो नहीं करेंगे। वेस्ट में रोहिणी, पुष्य एंड मूला है तो नहीं करेंगे। और नॉर्थ में पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी एंड विशाखा है तो नहीं करेंगे। तो इसको हम नक्षत्र शूल कहते हैं, इसको भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मुहूर्त। So, in case you have any question on मुहूर्त। दिशा शूल में गुरु जी ऐसा है ना कि मान लो अगर मैं जाना ही पड़े उस दिशा में तो हर दिन का एक परिहार भी है। संडे को जाना पड़े तो पान खा के जाइए। हाँ, मंडे वो को बता जाना दीजिए हो तो सबको। हाँ, बता दीजिए आप सबको। हाँ जी, मंडे को जाना हो तो दर्पण को देख के निकलिए घर से। इसी तरह से हर दिन का दिया हुआ है, हम नोट कर सकते हैं, पंचांग में होता है वैसे परिहार इसका। जैसे बता दीजिए हर दिन का। हाँ जी, हाँ जी, हर दिन का बता दो ना एक बार। हर दिन का जैसे मंगल का है तो शायद गुड़ खा के जाइए। ओके। बुध को जाना हो तो धनिया खा के जाइए आप। ओके। इसी तरह से बृहस्पति का है तो सही, कुछ थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा इस समय। वो तो ऐसे उसी शनिवार को प्लैनेट का जाना हो तो आइटम थोड़ा। हो गया ना। हाँ जी, उसी प्लैनेट का आइटम हो गया। आपने हाँ कहा जी, हाँ मंगल को जी, गुड़ खा के जाओ, वेडनेसडे को हाँ हाँ, धनिया खा के जाओ। तो अदरक है, शनिवार को अदरक खा के जा सकते हैं। इस तरह से है, मतलब हर दिन का है। कोई अगर उस दिशा में जाना पड़े तो हम ये कर सकते हैं, इस तरह से उसका उपाय करके जा सकते हैं। आप सर्कुलेट कर देना, अपना देख कर ना ग्रुप में सर्कुलेट कर देना, सो दैट हाँ जी, एवरीबॉडी हाँ जी, मैं गेट्स कर दूंगा सर्कुलेट बेनिफिट ऑफ दैट एक्चुअली। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। या ये क्वेश्चन था, ये जब हम लोग देख रहे हैं तो हमें अपनी जन्म पत्री से कोई मतलब नहीं, इट इज कॉमन फॉर ऑल। हमने बीच में देखा था लग्न बल है, तारा बल है, चंद्र बल है। हाँ वो ठीक था, यस। दैट इज कनेक्टेड विद द जन्म पत्री। तो कुछ पार्ट हैं जो जन्म पत्री से भी कनेक्टेड है, बट बेसिकली बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ ऑस्पिशियस टाइम, तो नथिंग टू डू विद जन्म पत्री एक्चुअली। अंकल एक दो जनरल क्वेश्चन है मेरे को जी। एक तो है कि जैसे घर में मंदिर होता है जी, और लोग मतलब किसी के यहाँ मंदिर हो, कहते हैं कि मंदिर को यू नो मंदिर का जो मुंह होता है इट शुड नॉट बी फेसिंग ईस्ट। ये है क्या अंकल, या इज इट जस्ट वन ऑफ दोस मिथ्स ओनली? नहीं, ईस्ट में तो होना चाहिए। तो व्हेन यू आर प्रेइंग यू कैन लुक वेस्ट, यू विल बी लुकिंग वेस्ट। करेक्ट। Is that okay then? Matlab, yeah, that is okay actually. The sun will come on the mandir that way. Yeah, The sun will rise from the east and come on the mandir. Correct. So that is okay. And then the दूसरा क्वेश्चन पूछना था गोत्र के बारे में अंकल। किसी ने मुझसे पूछा था कि दो लोगों की शादी है, अगर सेम गोत्र में नहीं हो सकती क्या? देखिए वो तो वही बारे में बताइए अंकल। जेनेटिकल प्रॉब्लम आ गई एक्चुअली में। सेम उसको ब्रदर सिस्टर मानते हैं। हाँ, तो दे बिलोंग टू द सेम यू कैन से फैमिली एक्चुअली। या आई सी। तो इसमें फिर अंकल आई मीन आप कैसे एडवाइस देते हैं फिर ऐसी सिचुएशन में? देखिए आजकल क्या करते हैं, वैलिड नहीं है पर कि अगर सेम गोत्र में होती भी है तो कहते हैं कि नहीं, फादर का गोत्र देखा जाता है ना, तो वो मदर के गोत्र से मिला लेते हैं, शादी तो करनी है उनको। अच्छा। तो, और दूसरा ये है कि पहले टाइम में होता था इसका पर्पस, क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे लोग जो है, तो नेचुरली दे बिलोंग टू द सेम फैमिली और बिल्कुल आसपास उनका रिलेशन होता था। बट आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है एक दूसरे को बुरी तरह से जो है। और अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां आप देखिए कजिन वगैरह में तो शादियां होती हैं आपस में। हाँ जी, ठीक है अंकल, थैंक यू।
सर जैसे हम किसी को स्टोन रिकमेंड करते हैं कोई भी, तो वो पूछते हैं किस टाइम पे ही मतलब डे ठीक है हमने निकाल दिया अच्छा वाला डे और उस स्टोन से रिलेटेड वाला डे हो गया, बट फिर वो टाइम पूछते हैं। तो क्या जैसे मान लो सैटर्न का स्टोन पहनना है, तो हम क्या सैटर्न के होरा में रिकमेंड कर सकते हैं बेस्ट पहनने को? दैट इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली कि और अच्छा। सैटर्न का होरा भी हमको सबको पता है कि सनराइज से विद इन एन आवर आप पहन लेंगे तो दैट इज द बेस्ट टाइम। सुबह का टाइम भी है, पूजा पाठ करने के लिए अच्छा समय भी है, क्योंकि उसके बाद तो 8 घंटे के बाद आएगा, 7 घंटे के बाद ही। तो उस टाइम तो फिर दिन जिस वाल जो स्टोन पहनाना उसी के होरा, उसी के प्लैनेट के लॉर्ड के होरा में हम रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल, होरा में भी फर्स्ट होरा में, हाँ, क्योंकि सेकंड टाइम जो हो रहा आएगा वो दिन में वो आएगा 3-4 इवनिंग। बजे। हाँ, हाँ, वो ठीक नहीं है। तो मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम कि जैसे सनराइज हो विद इन 1 आवर ऑफ सनराइज। ओके। हेलो गुरुजी, जैसे अभी शायद विदित ने करा था ना भगवान राम की कुंडली का जिक्र, तो उसमें कुछ अगर आप अनुमति दें तो थोड़ा सा ऐसे था कि भगवान राम की कुंडली में दाम्पत्य सुख में भी कमी थी और उनको जो अभिषेक होना था वो भी नहीं होना था क्योंकि उनका शनि रेट्रोग्रेड था। इस वजह से उनका भी राज्याभिषेक जो हुआ वो नहीं हो पाया और दाम्पत्य सुख में जो कमी थी वो भी रही। कुंडली के योगों ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया, क्योंकि कहते हैं कर्क लगन में अगर 6th लॉर्ड बृहस्पति लगन में आ जाए तो दाम्पत्य सुख में कमी होती है। ये बहुत जगह आज भी देखा है, मैंने भी देखा है, और कई जगह जिनके कर्क लगन में बृहस्पति अगर लगन में आ जाए तो उन्हें दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता। ऐसे जैसे भगवान राम के 7वें घर में मकर का मंगल है, चौथे घर में तुला का शनि है, तो ये सब जो योग थे उन्होंने भी दाम्पत्य सुख में कमी लाई उनके लिए। नहीं, इनका विदित जी का कहने का मतलब ये है गुरु जी, उनको दशाक्रम भी जो मिला ना भगवान राम को, वो सारा एडवर्स था। शनि की महादशा मिली जब उनका वनवास हुआ, और ये बुध जो होता है अकारक ग्रह होता है, बुध की दशा भी मिली उनको। तो इसीलिए उनको इतने दुख देखने पड़े शुरू में सारे के सारे। ठीक है, विदित जी आप बोलिए कुछ। कि मैंने नहीं बोला, राजेश जी ने डिस्कस किया था शायद ये। अच्छा, हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था सर, मतलब वही मैं यही कहना चाह रहा था कि जो कुंडली में लिखा है मुहूर्त से उस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जो मेरा कहने का मतलब ये था। देखिए, तो मुहूर्त है कि शादी में कोई बाधा ना हो, लेकिन मुहूर्त इज नॉट फॉर द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। नहीं, जो राज तिलक में तो बाधा ही ना सर, राज तिलक तो पूरा हुआ ही नहीं मुहूर्त के बावजूद भी। हाँ, वो चीज अलग है, बट जो हम वो तो इवेंट भी नहीं हुई ना सर, जबकि मुहूर्त अच्छा था। बट इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैरिज के मुहूर्त की बात की, तो मैरिज का मुहूर्त का पर्पज ये है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारा बिल्कुल सही सलामत हो, कोई बाधा ना आए उसके अंदर। ये दैट इज नॉट मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप कि अगर अच्छे मुहूर्त में करेंगे तो हस्बैंड वाइफ की जो मैचिंग अपने आप हो गई, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। अंकल, अभी ये जो ट्रांजिट्स आ रहे हैं और रेट्रोग्रेड हो रहे हैं प्लैनेट्स, इनके बारे में कुछ बताइए अंकल। अभी जैसे देखिए, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो चुका है ऑलरेडी, और ये 4.5 महीने तक रेट्रोग्रेड रहता है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड चल रहा है अभी, और जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला है 20 जून को जो है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि 2 जून को मंगल, it has gone to the 4th sign, that is Cancer sign, which is opposite to the sign of Saturn. Saturn की पोजीशन अगर आप देखें तो Saturn इस समय जो है कैप्रिकॉर्न साइन में है, ट्रांजिट में, और वक्री हो गया, तो इट मींस इट हैज बिकम स्ट्रॉन्गर नाउ। और अब जो है जो मंगल है 2 जून को वो 4 नंबर साइन में चला गया, which is opposite to the sign of Saturn actually. तो मंगल जो है Saturn को देख रहा है। तीसरा यह है कि राहु जो है वो 2nd साइन में है, जो चल रहा है सितंबर 2020 से 2nd साइन में चल रहा है, वो भी सैटर्न को देख रहा है। और इसके अलावा 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में सन भी 4 नंबर राशि में आ जाएगा, सन भी जो है वो 4 नंबर राशि में आ जाएगा। तो देन यू सी द पोजीशन ऑफ सैटर्न। इस सैटर्न की पोजीशन क्या हुई कि रेट्रोग्रेड सैटर्न इन द 10th साइन,
has an association of which planet? Mars, Rahu, and Sun. All malefic. So it's really a very bad position actually. जिसके भी हॉरोस्कोप में 10th साइन में या जो भी जिस हाउस में 10th साइन है, किसी भी हॉरोस्कोप में जिस हाउस में 10th साइन है, तो one has to be careful about that house because it can create lot of problem concerning the significations of that house actually. और खास तौर से अभी आप देख भी रहे हैं कि सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है अभी 10 जून को जो है, अभी अगले हफ्ते। तो शनि की पोजीशन बहुत खराब है। तो जो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो आपको ये देखना है कि 10th साइन आपका किस हाउस में, एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट हाउस। अगर कोई जुपिटर वगैरह का एस्पेक्ट है, एसोसिएशन है आपके बर्थ चार्ट में, तो प्रॉब्लम कम होगी, लेकिन अगर जुपिटर वगैरह का एसोसिएशन नहीं है तो प्रॉब्लम काफी हो सकती है। और अगर हम मुंडेन इवेंट्स की बात करें तो उसमें भी जो देश में या वर्ल्ड में जो है प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना है। इवन जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो खराब होंगी, या हम कहेंगे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, या पर्टिकुलरली जैसे स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी काफी जो है वो एक वोलेटिलिटी या जो बुलिश ट्रेंड आ सकता है उसके अंदर जो है। तो बट ये बहुत एक डिफिकल्ट टाइम है टिल 20th जुलाई, क्योंकि मंगल जो है 20 जुलाई तक ये कैंसर साइन में रहेगा। तो वन हैज टू वेरी वेरी केयरफुल एक्चुअली। नहीं, डिफिकल्ट टाइम इसलिए कि ऑल मैलेफिक इकट्ठे हो गए हैं, दैट्स ऑल। सारे मैलेफिक देखिए ना, सन, मार्स, सैटर्न, राहु, तो नेचुरली जिस हाउस के ऊपर, जिस आपके हॉरोस्कोप में जो 10th साइन है जहां भी जिस हाउस में भी है, तो उसके ऊपर जब 4 मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा तो दैट हाउस इज बैडली डैमेज्ड एक्चुअली। और ऐसे टाइम में एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत होते हैं, एक्सीडेंट हो या बीमारी हो या कुछ उस टाइप की पॉसिबिलिटी के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एक्चुअली। सर तो इसका मतलब कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए तो काफी टफ होगा, उनका तो मेन फर्स्ट हाउस में ही। तो लग्न के ऊपर अगर 4 मैलेफिक प्लैनेट का अगर गोचर हो रहा है तो इट्स रियली बैड। और आप देख लीजिए कि आपके हॉरोस्कोप में जो है 10th साइन किस हाउस में फॉल करता है। अगर कोई प्रोटेक्शन है जुपिटर वगैरह का या किसी बेनिफिक प्लैनेट का, फिर तो प्रॉब्लम शायद ना हो, लेकिन अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके लग्न चार्ट में तो चांसेस ऑफ आई थिंक गेटिंग प्रॉब्लम्स। सर उपाय क्या रहेगा इन जनरल उपाय यही है कि शनि मंगल राहु का उपाय करिए आप कुछ भी इस पीरियड में। शनि को बेसिकली शनि जो बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो इन प्लैनेट्स का उपाय करेंगे जब भी कुछ ठीक होगा। और दूसरा प्रिकॉशन लीजिए, मतलब उस पीरियड में खासतौर से। तो सर मुंडेन के अकॉर्डिंग फिर ये कोरोना वगैरह वाली ट्रबल्स दोबारा आ सकती हैं? बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोरोना की जगह और कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ। सर मंगल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो वार वगैरह का सीन भी बन सकता है, क्योंकि मंगल इसमें वार वगैरह तो देखिए आजकल होती नहीं है, दैट इज नॉट नोबडी कैन अफोर्ड। बायो वेपन्स तो है ही सर, कोरोना इज ए बायो वेपन। तो वही जो भी है, मतलब जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। अंकल एक क्लैरिफिकेशन था इसमें, मंगल इज debilitated in Cancer, right, till the 20th of July. Correct. So when a debilitated planet has an aspect, does that change the nature of the aspect? Like debilitated ho ya na debilitated ho, to farak padta hai? No, it will not change the aspect. And whenever these two planets they combine, even Saturn and Mars actually, so they damage that house, whether debilitated or not. But the nature of these two planets is such that when they get associated with any house, then they completely damage that house. So uncle, इसमें जब जो कहते हैं कि अगर शनि जिस हाउस में बैठते हैं तो उस हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं, so should we also consider the strength of Shani during this time? प्रोटेक्ट तो जब करेंगे ना जब अकेला बैठा हो, उसके साथ 4 दुश्मन और हैं, तो प्रोटेक्ट कहाँ करने देंगे उसको? I see, okay. Yeah, when the planet is alone, then it is fine. Got it. Such a malefic affliction, ये तो बहुत रेयर होता है, कभी कभी आता है, और कहते हैं काफी साल के बाद ये पोजीशन आ रही है, जबकि जो इतना ज्यादा एफ्लिक्शन हो रहा है इकट्ठा जो है, और रेट्रोग्रेड वगैरह भी हो रहे हैं सारे प्लैनेट जो है। सर तो कैप्रिकॉर्न लग्न के अगर किसी के 7th हाउस में ऑलरेडी मार्स है डेबिलिटेटेड कैंसर साइन में, तो इन जनरल वो कैसा होता है? देखिए 7th साइन में तो मार्स अपनी जगह पर ट्रांजिट कर रहा है, तो उसको तो डैमेज नहीं करेगा 7th हाउस को,
लेकिन फर्स्ट हाउस को डेफिनेटली डैमेज करेगा। सर मतलब अपार्ट फ्रॉम ट्रांजिट अगर नॉर्मल किसी के लग्न चार्ट में 7th हाउस में कैंसर में मार्स है तो वो डेबिलिटेटेड अच्छा माना जाएगा कि खराब माना जाएगा? अच्छा क्यों माना जाएगा, मतलब कोई भी सर प्लैनेट क्योंकि अगर मार्स अग्रेशन है वो कम हो जाएगी थोड़ी सी या नहीं, देखिए एक चीज बताइए, मंगल मान लीजिए लग्न में है, लेट अस से मंगल इज इन द फर्स्ट हाउस, एक डेबिलिटेटेड है एक एक्सॉल्टेड है, दोनों में व्यक्ति के नेचर में क्या डिफरेंस होगा? सर वो एक्सॉल्टेड वाला तो अग्रेशन को पॉजिटिव चीजों में यूज करेगा, हाँ गुड एनर्जी, और डेबिलिटेटेड गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हाँ, वो चिड़चिड़ाते रहिए, कोई सुनेगा नहीं आपकी, आप गुस्सा करते रहिए, कुछ भी बुड़बुड़ाते रहिए, नोबडी विल लिसन टू यू एक्चुअली, आपकी हेल्थ भी खराब होगी। एंड 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस, so that indicate basically the nature of the spouse. Okay, sir. Yeah, so it's not good actually. Right, sir. Any other question? Or I think next time we will, I think, start with the Gemini system. तो Gemini के कुछ जो important principles हैं उनको हम देखेंगे, and as we have seen in the case of Ashtak Varga, how we utilize Ashtak Varga as an additional tool. So similarly, we can utilize some principles of Gemini system also in our predictions. तो हम लोग उसको देखेंगे next time से, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, thank you so much. Thank you so much, Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Pranam, Thank sir. you, sir. प्रणाम। Thank you, uncle. Namaste, sir. नमस्ते।